Good morning, dear children. Welcome back to Grade 8 Hindi online class. Today we are going to continue lesson 4 Sarojini Naidu. What we have studied in the previous classes, do you remember what we have studied about Sarojini Naidu? Sarojini Naidu कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की वीरांगनाओं में एक थी. She was one of the brave lady in India, isn't it? इनका जन्म कब हुआ था? When she was born? She was born on 13th February 1878. इनका जन्म 13 फरवरी 1878 में हुआ था. इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था. इनके पिता का नाम, his father name is अघोरनाथ चट्टोपाध्याय and his mother and father, her mother and father was educated. इसलिए उनके माता पिता सुशिक्षित थे. वर्ड्स में सुशिक्षित, एजुकेटेड. इसलिए बचपन से अंग्रेज में बोलना, पढ़ना, लिखना सीख लिया. इसलिए वर्ड्स में इसलिए सो सी learn to read, write and speak in Hindi. How you have to say in Hindi? इसलिए बचपन से अंग्रेजी में बोलना, पढ़ना, लिखना सीख लिया. ओके. नेक्स्ट 11 साल की उम्र में मैट्रिक परीक्षा पास की. सी हैज़ कंप्लीटेड हर मैट्रिक एग्ज़ाम इन 11 years old. नेक्स्ट 13 साल की उम्र में एक कविता लिखी थी. इसका नाम लेडी ऑफ द लेक. इसमें 1300 पंक्तियाँ हैं. So in her 13 years old she has written a poem. The title of the poem is Lady of the Lake. There are 1300 lines are there. In her 13 years old she has written a poem. There are 1300 lines are there. Okay. After that she has married Govinda Rajlu. She was the Brahmin, but his parents against of her marriage, but she opposed and she married him. Next she has written, she got the award. She was a poetess. She got award. Which award? Bharat Gokila award she got. She got the Bharat Gokila award. She was a poet. Even she participated in the politicals. So this much we have studied, isn't it? So next today's portion we can study. Listen here all. All take page number 20. All take page number 20 and look there. Okay. We can learn today this one. सरोजनी देवी. नेक्स्ट what she is doing. Okay. सरोजनी देवी की नस नस में हिंदुस्तान की भावधारा बह रही थी. She was a poet. Then why she was joined in the political? Because our country was in slave. So that she also joined in the with the freedom fighters and she helped. सरोजनी देवी की नस नस में हिंदुस्तान की भावधारा बह रही थी. शी वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट आवर कंट्री, आवर हिंदुस्तान. उन्होंने जात बांधी की तोड़कर शादी जरूर की थी. सी अगेंस्ट ऑफ दिस कास्ट एंड सी हैज मैरिड, दैट इज ट्रू. परंतु उनके हृदय में सीता और सावित्री का आदर्श लहरें लेता था. बट सी इन हर माइंड अबाउट दिस सावित्री एंड इन आवर इंडियन लेडीज आर वेरी द pious women. Two of them, Sita and Savitri, is always in her mind. विदेशी नारियों को वह बेलगाम बनाना नहीं चाहती थी. सी डजंट लाइक द स्लेव ऑफ द फॉरेन लेडीज. ओके. एक सभा में उन्होंने बहनों से कहा था. इन ए मीटिंग सी सेड फॉर द सिस्टर्स, जाति की योग्यता की जांच स्त्रियों से और उनके कामों से होती है. व्हाट सी सेड इन द मीटिंग, वी हैव टू we should not see the eligibility in the caste. We have to see the eligibility in their works. इसलिए जिनकी आत्मा में सीता और सावित्री सी अमर देवियाँ बसी हुई हैं, वे भारत माता की सेवा में जुट जाए. So those who are mind Sita and Savitri is there, they can ready to serve for the country. Next parallel. Sarojini Devi, totally what is mean by this paragraph? She is always thinking about our country and our women. About India's women, how they should be.
देन सरोजनी देवी की आत्मा में भारत की देवियों का आदर्श बहुत गहराई के साथ गुस्सा हुआ था, इसी से उन पर विदेशी आदर्श अपना प्रभाव नहीं पड़ता. She is thinking about our Indian culture or Indian ladies so that she is not attracted by the foreign country. सरोजनी देवी सन 1915 में राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश हुआ. Then when she entered in the participated in the politics, she was 1915. 1915 she participated in the political field. यहीं से आपके जीवन में नया अध्याय शुरू हुआ. सो नाउ शी गॉट ए न्यू लाइफ. 1916 में आप लखनऊ कांग्रेस में पहली बार सम्मिलित हुई. दिन फर्स्ट शी अटेंड इन द कांग्रेस मीटिंग और वहाँ पर आपने जो भाषण दिया उनका प्रभाव श्रोताओं पर ऐसा पड़ा कि तभी से आपकी गणना कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में होने लगी. When she given at first this speech, she was attracted by everyone. So they thought we got a new leader. Okay, next. श्रीमती सरोजनी नायडू ने हिंदुस्तान भर में ही नहीं अपितु यूरोप तथा दक्षिण अफ्रीका दौरा करके जो भाषण दिए उनसे उसके व्यक्तित्व का परिचय मिल गया था. Not only in our country, she went to the other place also. Wherever she go, she got name. नेक्स्ट 1925 में आप सर्वसम्मति से कानपुर के कांग्रेस का अध्यक्ष बनना गौरव की ही नहीं बल्कि गर्व की बात समझी जाती थी. सो इन 1925 शी बिकम द लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी. ओके, बल्कि गर्व की बात समझी जाती थी. शी थॉट इट इज द प्राउड. आपने गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह में सक्रिय बदन सी पार्टिसिपेट इन दिस गांधी जी नमक सत्याग्रह साल्ट स्ट्रगल. 1931 में आप गांधी जी के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने लंदन गई. देन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सी वेंट टू 1931. सी वेंट फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. 1931 और 32 में तथा 1940 में कांग्रेस आंदोलन में भाग लेकर आप जेल गई. देन सी पार्टिसिपेट इन द कांग्रेस एंड सी पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड सी वेंट टू द जेल. सांप्रदायिकता के विरुद्ध आपने जो कार्य किया वह स्तुत्य है. सो वाट एवर सी हैज डन एवरीथिंग प्राइसेबल. हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सदा तत्परता के साथ जीवन पर्यंत कार्य करती रही. पर सी वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम. नेक्स्ट 1947 में दिल्ली में जब एशियाई सम्मेलन हुआ उनका सभापतित्व अपने ही ग्रहण कर लिया. देन द एशियाई देयर वाज ए मीटिंग देयर आल्सो सी एक्सेप्टेड द लीडर पोस्ट. भारत के आज़ाद होने पर 15 अगस्त 1947 को आप उत्तर प्रदेश के गवर्नर हुई. आफ्टर गॉट फ्रीडम सी बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. इसी पद पर कार्य करते हुए सी वॉज वाइल डूइंग दिस वर्क फरवरी 1949 को आपका देहांत हुआ. सी डाइड इन 1940. इनका निधन 1947 में 9 में हुआ था. अब भारतीय महिलाओं में सिरमौर थी. सी वॉज द बेस्ट लेडीज इन इंडिया. और आप पर भारत को सदा गर्व रहेगा. इंडिया इज प्राउड ऑफ हर. ओके, सो यू नो अबाउट हर. नाउ वी कैन सी आई एम फिनिशिंग फ्रॉम दिस. नेक्स्ट वी कैन लर्न द ऑपोजिट्स. ऑपोजिट्स ऑलरेडी यू हैव स्टडीड. नाउ वी कैन स्टडी लिंग एंड वचन. लिंग बदलिए स्त्री पुरुष. स्त्री पुरुष. स्त्री पुरुष वर्ड्स में स्त्री lady, purush, man. Then panditayin, pandit, the female scholar, pandit, male scholar. Then mata, mother, pita, father. Kavyatri, kavi, female poetess, kavi, poet. Nar, man, nari, lady or woman. Netri, neta, male, female leader, leader. Okay, next vachan badaliye, change the number. Lahar, lahare, wave, waves. नेता नेता लीडर लीडर्स both same word only. नेता नेता लीडर.
Next look here, मौका मौके, chance chances, मौका मौके, जरूरत ज़रूरतें, need needs, मित्र मित्र friend friends, फूल फूल. ओके. नेक्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स. सरोजनी अपने पिता की पहली संतान थी. सरोजनी अपने पिता की पहली संतान थी. सरोजनी वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ हर फादर. सरोजनी अपने पिता की पहली संतान थी. संतान चाइल्ड. नेक्स्ट इंग्लैंड में 3 साल तक किंग्स कॉलेज में शिक्षा पाती रही. वेयर शी वॉज स्टडीड इन द किंग्स कॉलेज. 3 years शी स्टडीड इन द किंग्स कॉलेज इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में 3 साल तक किंग्स कॉलेज में शिक्षा पाती रही. शिक्षा मीन्स एजुकेशन. ओके. सरोजनी ने गोविंद राजलू से विवाह किया. शी हैज मैरिड गोविंद राजलू. सरोजनी ने गोविंद राजलू नायडू से विवाह किया. नेक्स्ट 4th वन, गांधी जी के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने लंदन गई. शी वेंट टू लंदन फॉर पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट सरोजनी नायडू डैश की गवर्नर नियुक्ति. शी हैज सेलेक्टेड एज गवर्नर इन उत्तर प्रदेश. सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर नियुक्त हुई. सी वंस मोर दिस फिल इन द ब्लैंक्स. सरोजनी अपने पिता की पहली संतान थी. सरोजनी अपने पिता की पहली संतान थी. सरोजनी वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ हर फादर. इंग्लैंड में 3 साल तक किंग्स कॉलेज में शिक्षा पाती रही. इंग्लैंड वाली 3 साल 3 year तक टिल किंग्स कॉलेज में शिक्षा एजुकेशन. ही गॉट एजुकेशन इन किंग्स कॉलेज 3 years. सरोजनी ने गोविंद राजलू नायडू से विवाह किया. शी हैज मैरिड गोविंद राजलू. सरोजनी के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने लंदन गई थी. गांधी जी के साथ गोलमेज कांग्रेस में भाग लेने लंदन गई थी. फॉर अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शी वेंट टू लंदन. सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर नियुक्त हुई. सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर नियुक्त. शी हैज सेलेक्टेड एज ए गवर्नर इन उत्तर प्रदेश. ओके चिल्ड्रन, धन्यवाद.